Namaste, Vanakkam. Welcome to Learning English with Nandita. Today we are going to deal with a very realistic poem called My Mother at 66 by Kamla Das. Kamla Das, who is also known as the mother of English Indian poems, modern English Indian poems. She was an Indian English author as well as poet who has written numerous number of works, and her autobiography is known as My Story. In this poem, she deals with the theme of aging as a natural process. She also talks about death, or the imminent death, which is about to happen to any old person. And while doing so, she is looking around the world and noticing the thriving world outside. So, altogether, she is talking about the flow of life. This poem also shows or depicts the helplessness of young aspirants and young generation. It also portrays in different stages of life how everybody grow and they grow old, and how they face various situations in their life and how those situations affect them. So that's what the poem and the theme or the message of the poem is. So आज हम लोग करने जा रहे हैं poem My Mother at 66 by none other than कमला दास. कमला दास को कमला सुरैया भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दो वो केरल के नायर फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन अपने 65 ईयर्स ऑफ एज में उन्होंने इस्लाम को अपना लिया और उन्होंने अपना नाम भी चेंज करके कमला सुरैया कर दिया था. उनके पोएम्स जो हैं वो काफ़ी ओरिजिनल होते हैं, काफ़ी रियलिस्टिक होते हैं, काफ़ी वर्सटाइल होते हैं. वो सिर्फ पोएट नहीं है, शी इज़ ऑल्सो ऑथर टू मैनी बुक्स, एंड हर ऑटोबायोग्राफी इज़ नोन एज माई स्टोरी. उनका खुद का आप कथा जो है वो माई स्टोरी के नाम से जाना जाता है. तो आइए और थोड़ा जानते हैं कमला दास के बारे में, जिन्होंने की ये पोएम माई मदर एट 66 लिखा है. उनका जो पेन, मैंने तो आपको पहले ही बताया है कि इस पोएम को जब उन्होंने पब्लिश किया था 1999 में, उस वक्त वो कमला सुरैया के नाम से भी उसी वक्त से वो कमला सुरैया के नाम से जाने लगी क्योंकि उन्होंने इस्लाम अपना लिया था. व्हाट वाज हर पेन नेम? हर पेन नेम वाज माधवी कुट्टी, और उन्होंने माधवी कुट्टी नाम से बहुत सारे काम लिखे हैं अपने. शी वॉज बॉर्न इन 1934 in Kerala to a Nair family. She is a feminist writer, and she is famous for capturing all kinds of complications and especially human relationship. Here also in this poem there is a wonderful bonding, complicated but wonderful intricate bonding between mother and a daughter, which is noticeable. कमला दास का ये पोएम जो है वो माँ और बेटी के रिलेशनशिप के बारे में है. कमला दास को माधवी कुट्टी भी कहा जाता है और वो बाद में कमला सुरैया भी जाने लगी. तो आइए पोएम को रीड करते हैं, एंड लेट्स कैप्चर द एसेंस ऑफ द पोएम by line reading and explanation of the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. But soon put that thought away and looked out at the young trees sprinting and merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. Okay? So, as I have read through the poem, you can notice that this is a single sentence फ्री वर्स पोएम. ठीक है, इसमें कोई राइमिंग नहीं है. ये एक ही सेंटेंस में फ्री वर्स पोएम है. फ्री वर्स पोएम किसको कहा जाता है? जो कि फ्री है, विदाउट एनी राइम है, कोई तुकबंदी नहीं हुई है. एक सेंटेंस है, बीच बीच में कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, ये सब हैं. बाकी
एक ही लाइन में रियलिस्टिकली उन्होंने एक सिचुएशन को बताया है जहाँ पर कि हम में से कोई भी आ सकता है, हम में से कोई भी अपनी माँ को या अपने पापा को देख कर के सोच सकता है यार ये तो सही में काफ़ी एज हो गया है इनको, और फिर अपने अंदर का वो जो भय है, वो जो डर है कि अब ये कब तक जिएंगे, है ना, शायद इनका डेथ होने ही वाला है, ये फिर से उभर के आ जाता है हमारे सामने। और हम उसको जितना भी नकारना चाहे, उस डर को दूर भगा दे अपने दिमाग से और दूसरी चीज़ों को देखने लगे, आसपास के बच्चों को मैरीली मैरीली मतलब हैप्पीली नाचते गाते देखने लगे, ट्रीज़ को देखे, नेचर को देखे। लेकिन हमें वो डर वापस आ जाता है जैसे ही वो हम उनको फेस करते हैं, अपने एजिंग पेरेंट्स को फेस करते हैं। ठीक वही यहाँ पर हो रहा है। पोएट जो है वो कोचिन एयरपोर्ट पे जा रही है। कोचिन मतलब कोची एयरपोर्ट। अब अभी तो अब सारे नेम्स जो हैं, जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट लोगों ने जो नाम दिए थे, जैसे बैंगलोर को बेंगलुरु कर चुके हैं, त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम, वापस फिर से तिरुवनंतपुरम बोल रहे हैं। तो वैसे नाम हम लोग चेंज कर चुके हैं। तो कोचिन एयरपोर्ट इज एक्चुअली कोची एयरपोर्ट इन केरला। एंड शी हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर। शी वॉज डोजिंग ऑफ। डोजिंग मतलब ऐसे करके नैप लेना ना, ऐसे ऐसे करके सो जाना, ठीक है। सो शी वॉज डोजिंग ऑफ एंड शी वॉज डोजिंग ऑफ ओपन माउथ, हाँ करके सो रही थी। वाई इट वॉज हैपनिंग? बिकॉज जब एज हो जाता है या फिर आप बहुत टायर्ड होते हैं, तब देखेंगे आप अपने मुंह को खोल के सोते हैं, ठीक है। तो उनकी मम्मी भी वैसे ही सो रही थी। And here she is using a simile also. She is saying her face ashen like that of a corpse. मतलब उसका चेहरा, हर फेस, किसका चेहरा, हर यहाँ पर कौन सी वाली लेडी हैं, कमला दास है या उनकी मम्मी है। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर कि उनकी मम्मी जो थी, उनकी अम्मा जो थी, शी वॉज ऑल्सो अ वेरी फेमस मलयाली पोइट, ठीक है। उनकी मदर भी एक मलयाली पोइट थी। तो हर फेस यहाँ पर एक्चुअली कमला दास की माँ के चेहरे को वो बता रही हैं और कह रही हैं कि हर फेस एशन। एशन मतलब लाइक ऐश। व्हाट डू यू मीन बाय ऐश? ऐश मतलब राख। तो राख की तरह सफ़ेद दिख रहा था और कॉप्स जैसा दिख रहा था। कॉप्स, व्हाट डू यू मीन बाय कॉप्स? कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, जैसे कि मैंने नीचे वर्ड मीनिंग्स में भी दिया हुआ है। तो कॉप्स की तरह उनका डेड बॉडी दिख रहा था। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। तो वो रियलाइज़ करी कि ये शायद उतनी ही बूढ़ी हो गई हैं जितनी कि वो दिख रही हैं। लेकिन आई पुट दैट थॉट अवे एंड आई लुक्ड एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। सो आर द ट्रीज एक्चुअली स्प्रिंटिंग? कैन ट्रीज स्प्रिंट? नहीं, यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे ऊपर सिमिली है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हुआ है। ट्रीज को पर्सोनिफाई किया गया है, जैसे लोग दौड़ते हैं, है ना, छोटी दौड़, 100 मीटर्स 200 मीटर्स स्प्रिंट्स बोला जाता है, रेस को स्प्रिंट बोला जाता है। तो trees are sprinting. Why they are sprinting? Because every time you look out of a car or running vehicle, any kind of vehicle, you notice that the trees are moving the other way. ठीक है, so as if they are running away. So यहाँ पर भी trees को sprint करते हुए देख रही है. This also suggests the tone of vigor, है ना, द टोन ऑफ एंथुजियाज्म, द टोन ऑफ यूथफुलनेस। जब वो चिल्ड्रन को देखती है, जब वो ट्रीज़ को देखती है, तो वो फ्रेशनेस को महसूस करती है, यूथ को महसूस करती है। बट जब वो अपने मम्मी को देखती है, तब वो कॉप्स को सोच रही है, डेड बॉडी को सोच रही है, तब वो ऐश को सोच रही है, जले हुए राख को सोच रही है। सो दैट इज़ ओल्ड एज, दैट इज़ डेथ, बट दिस साइड इट इज़ ऑल विगर एंड यूथफुलनेस। एंड द मेरी चिल्ड्रन आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिल आउट मतलब भर के, उभर के बाहर निकल आना, ठीक है। द वाटर स्पिल्ड आउट ऑफ द ग्लास, ग्लास के ऊपर से पानी नीचे छलक गया, ठीक है। तो कब छलकेगा? जब वो पूरी तरह से भर गया हो। सो दे आर फिल्ड विद विगर, दे आर फिल्ड विद पैशन, ठीक है। ऑल दीज आर यूथफुल imageries in front of her eyes. But then this has happened, the first setting is over, she has she is away from her car, now she is at the airport. अब वो क्या हो रहा है? अब वो कौन सा वर्ड यूज कर रही है? But. So that was a contrast and now this is another contrast. But after the airport security check, standing a few yards away. Now यहाँ पर देखो, मैंने फिर से underline किया, this is another figure of speech here. She has used the sir. But after the airport security check, standing a few yards away,
here you can see she has, here I have underlined, and why I have underlined, because there is a consonance. consonance का मतलब क्या होता है? consonance का मतलब होता है एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर कि एक कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आ रहा है बट फर्स्ट सिलेबल पे या स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड में नहीं आ रहा है, कहीं पर भी आ रहा है. तो आप देखो एयरपोर्ट्स में एस है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी, वहाँ पर फर्स्ट एस है, ठीक है. चेक स्टैंडिंग, वहाँ पर भी स्टैंडिंग में भी एस है. यार्ड्स, वहाँ पर भी एस है. सो इस पूरे 3-4 वर्ड जो साथ में आ रहे हैं, लग करके आ रहे हैं, उन सभी पे स साउंड प्रोमिनेंट है. और इट हैज़ कम like everywhere, not at the beginning but everywhere. So here there is a use of consonants, right? बट तो वो इससे पहले वो क्या बोल रही थी, जब वो कोचीन आते वक्त, कोची एयरपोर्ट आते वक्त कार में बैठी हुई थी, माँ को देख करके डर जाती है कि अरे यार ये काफ़ी बूढ़ी हो गई. और वो बाहर ट्रीज़ को, फ्रेश ट्रीज़ को भागते हुए, स्पिलिंग आउट, रनिंग मैरी चिल्ड्रन, मैरी का मतलब हैप्पी चिल्ड्रन को देखती है. तो थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग से वो इमेज हट जाता है, उसकी मदर का बूढ़ापे वाला इमेज हट जाता है. बट अगेन एट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के पास खड़े होकर के जब वो फिर से अपने माँ के वेन पेल चेहरे को देखती है. वेन मतलब कलरलेस, वेन पेल मतलब ऑल्सो कलरलेस. वेन एंड पेल आर सेम थिंग. एज अ लेट विंटर्स मून. अब देखो, जब शुरू में वो स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मैनी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, दिस आर इमेजरीज ऑफ हैप्पीनेस, यूथफुलनेस, विगर, ठीक है. लेकिन जब विंटर्स मून है तो वो कौन सा इमेज है? वो इमेज है डिकेइंग का, डेथ का, है ना, डैमेज का इमेज है, ठीक है. सो दिस इज नेगेटिव इमेजरी. तो वो फिर से सिमिली यूज कर रही है विंटर मून के साथ, अपने पेल माँ के पेल चेहरे को कंपेयर कर रही है. एंड फेल्ट दैट ओल्ड familiar ache. Familiar means which is a known ache. That means it is a childhood ache which she has carried. Every time she has looked at her mother, somewhere or down the line she has thought whether she is going to stay, whether she is going to live forever or she is going to die. हम सभी कोई सोचते हैं ना कि अपने माँ को देख करके मम्मी रहेगी ना, मम्मी रहेगी ना. We are so dependent on our mothers that we always think that. तो same familiar ache. Ache means pain. ये पेन फिर से मेरे पास आ जाता है जो कि चाइल्डहुड का है, चाइल्डहुड फियर. बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून. लेकिन मैंने क्या कहा? मैंने अपनी मम्मी को ये सब नहीं बताई, अपने डर को नहीं जताया, बल्कि मैंने सिर्फ कहा सी यू, अच्छा ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर से. एंड अम्मा करके बुलाया मैंने. एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. हियर ऑल्सो देयर इज अ what is that figure of speech, and what is that, what kind of figure of speech? It is repetition. repetition मतलब क्या होता है? जब एक ही वर्ड या एक ही फ्रेज आप बार बार रिपीट करते हो सिग्निफाई करने के लिए, इंपॉर्टेंस देने के लिए. सो शी वॉज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग एंड स्माइलिंग. सो वाई वॉज शी स्माइलिंग एंड स्माइलिंग एंड स्माइलिंग? टू हाइड अवे दैट फियर फ्रॉम हर मदर, फ्रॉम हर अम्मा, ठीक है. वो जो डर है, वो जो पेन है उनके अंदर, है ना, कि शायद मैं अपनी मम्मी को आखिरी बार देख रही हूँ, शायद मैं अपनी मम्मी को खो दूंगी इसके बाद, ये पेन को वो छुपाती हुई वो हंसी है, वो स्माइल है. ओके. So I hope you have understood it. I have already told you that the poem is written in free verse and it contains only single line with lot of punctuation marks. Let me give you an outline of the poem so that it can help you for long answer type questions. The poet is basically traveling to the Cochin airport or the Kochi airport with her aging mother, and she is looking at her mother. At that point of time, when she is looking at her mother, the mother is dozing off with tiredness, and she is weary, and she is pale, and she is open mouth. ठीक है. तो दैट इज शोइंग दैट कि वो बहुत थकी हुई है या बहुत एज हो गया उनका. और ये देख करके पोएट डर जाती है. शी बिकम्स फियरफुल दैट हर मदर्स डेथ इज नियर. शी इज एज ओल्ड एज शी सीम्स टू बी. But then she directs herself to something else outside of the window of the car, and she notices the sprinting trees, है ना. यहाँ पे personification हुआ है trees, जैसे कि दौड़ के भाग के चले जा रहे हैं. and इससे वो एक इमेज, एक यूथफुल इमेज भी ला रही है जो कि full of energy and vigor है.
है ना। और फिर मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, जैसे कि भर भर के बच्चे बाहर निकल रहे हैं दौड़ते भागते खुशी खुशी। तो ये सब चीज़ें वो देखती है और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करती है। शी डिस्ट्रैक्ट्स हरसेल्फ फ्रॉम हर फियर ऑफ लूजिंग हर mother. However, at the airport, while she's standing and saying goodbye to her at the security check, she again gets back to her fearful mode, and the loss of the fear and the loss of separation is very much evident while she is smiling and smiling and smiling and saying goodbye to her mother. Okay, so however, at the airport, while saying goodbyes at the security check, although the poet is smiling, but from inside she is tormented for bidding her mother goodbye as she is aging, as the mother is aging. Okay, so that's the long answer mode for you for this poem. Now let's discuss the already discussed part, and what are they? The figures of speech. मैंने सिमिली तो तुमको 2 बार बताया ही है। एक बार जब वो मून से अपनी मम्मी का फेस कंपेयर करती है, और एक बार जब वो कॉप्स मतलब डेड बॉडी के साथ अपने डोजिंग ऑफ मदर को कंपेयर करती है। ठीक है। कॉन्सोनेंट्स मैंने बताया, जब सिक्योरिटी, स्टैंडिंग एट द एयरपोर्ट, सिक्योरिटी, वहाँ पर स साउंड बार बार आया है, सो वो कॉन्सोनेंट्स है। मेटाफर यहाँ पर कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? जहाँ पर वो स्प्रिंटिंग ट्रीज बता रही है या स्पिलिंग आउट मैरी चिल्ड्रन बता रही है, दैट इज़ अ मेटाफर। ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली इमेजरी बना रही है, वैसा होता नहीं है क्योंकि ट्री स्प्रिंट नहीं करते हैं। ओके और फिर वही स्प्रिंटिंग ट्रीज इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज ट्रीज दौड़ते भी नहीं है, तो वहाँ पर पर्सन जैसे बताने के लिए बताया गया है। And there has been lots and lots of symbolism, especially there is a dual symbolism. One is about all the aging, जैसे कि winter moon हो गया, aging and decaying बता रहा है, and merry children हो गया या sprinting trees हो गया, these are youthfulness and energy and vigor बता रहा है. So there is dual two contrasting symbolism throughout the poem. And in the last line there is repetition and hyperbole भी आप बोल सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार एक ही चीज़ को बताना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना इस hyperbole. जब वो smile and smile and smile बोल रही है, so she is repeating and she is using hyperbole as well. Okay, so let's go into the reading of it once again so that everything is reminded to you. एक बार revise हो जाएगा. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale, as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. So the poem is by Kamla Das, and the poem is called My Mother at 66, right? So I hope you have understood the poem. Everywhere here, wherever she has used I or my, she is actually referring to her own self. This is from her own experience. ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफिकल पीस टाइप का ही है, अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बता रही है कमला दास। तो जहाँ पर भी आई या माई इस्तेमाल कर रही है, there she is actually referring to her own self. Similes I have talked about, symbolism I have talked about, smile and smile and smile is repetition. This is also hyperbole. Okay, so I hope you have understood the poem. What kind of contextual questions can come from this poem? Anywhere, कहीं से भी उठा करके figures of speech पूछा जा सकता है कि इस लाइन में कौन सा figure of speech यूज हुआ है ना, कहाँ पर सिंबल है, कहाँ पर मेटाफर है, कहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। प्रोनाउंस जिस तरह के ना, हर फेस इज हर मदर्स फेस, जहाँ पर भी आई इस्तेमाल हुआ है या माई इस्तेमाल हुआ है, दोज आर कमला दास हर सेल्फ, राइट। फिर सिम्बॉलिज्म, जैसे डुअल सिम्बलिज्म है, ट्रीज एंड चिल्ड्रन अपोज टू द विंटर्स मून, है ना, इस तरह के डुअल सिम्बलिज्म के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। पोएम जो है, व्हाट काइंड ऑफ टोन डज द पोएम हैज़? द पोएम इज़ वेरी डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट है, असर्टिव है ना, और सैड भी है और फियरफुल भी है। सैडनेस भी बताता है और फियर को भी बताता है कि वो डर रही है अपने एजिंग मदर के बारे में।
सेटिंग्स कहाँ कहाँ पर है पोएम का? एक तो वो कार में जब वो लेकर जा रही है, और दूसरा है एयरपोर्ट पे, ठीक है. सो दिस आर द टू सेटिंग्स, टू प्लेसेस वेयर द poem has taken place. And I hope you have understood the poem. Very best of luck for with the poem and the question answers. Thank you. Good day to you. Keep learning, keep exploring.